ओके फाइन. सो आपसे पूछा था मैंने कि हम मैं आपसे पूछा था रिग्रेशन से कंफर्टेबल हैं. सो I'll get response that you are not comfortable with regression. So we have to cover multiple linear regression in our syllabus. So I will start again by introducing the linear regression to your syllabus. So we'll cover it by 1 or 2 lectures. So let's say we are having a data D. Fine. So am I audible now? सर यस सर. Okay. Fine. सर हाँ. सर एक्चुअली वो असाइनमेंट से रिलेटेड पूछना था आपसे. क्लास के बाद रिकॉर्डिंग चल रही है. ओके सर. Fine. So this is our so we'll start with the uh, linear regression. So let's say we are having data. So this is we are having bivariate data is available. So we are having one attribute that is named as x and another attribute that is named as y. So this y is dependent attribute and this x is a regressor variable. That is your y depends on x and x is supposed to be independent variable, or we can say that x is the observation and y are the labels. So we have to find what is the best label of y. So if based on our output, so y may be a continuous data or y may be a discrete data. So if we are having continuous data, so we'll go for regression. If we are having discrete data, then we'll go for classification. So we have regression in our syllabus, so we'll go for continuous data. So y is supposed to be continuous data, then we'll go for regression. So we'll start with linear regression. So हमने last semester में भी देखा था. So let's say we are having a data set. So this is an x, this is an x and this is y. So x is supposed to be an independent because size of plot doesn't depend on anything. So this is a 500, 1000, 1200 and so on. And we are having prices. So these are different prices available of these plots. So these are the prices of this plot. So we can say that this y is depends on x. So this x is independent and this y is dependent. When we assume that this is a relationship, so we'll make this relationship on a scatter plot. So this is our scatter plot. So we like to make हमने पियर्सन कोफिशिएंट देखा था. सो हम चेक कर सकते हैं कि whether this is related or not. So I suppose this is an positive relationship between x and y. We are having a strong relationship. Like हमने लास्ट क्लास में भी देखा था रिलेशनशिप बिटवीन dependent variable and independent variable. So for dependent variable, the relationships looks like this, like such a contour for multivariate data, and for this independent variable, so relationship looks like that. So you can recall from this figure. So this is my relationship and data may lie here, here or here or here. So we can find that a relationship in between this data is supposed to be linear. So we can find that this is a positive relationship, and let's say we assume that this relationship is a linear relationship. So we can go for positive relationship. So positive linear relationship. So this is supposed to be a relationship like that. So we have to create a line that makes find out the relationship best fitted line to cover all those points. So either we can go for a single line. So this is a linear equation available here, or we can go from some quadratic equation. So this is like a quadratic equation available here. So what we have to do is we can go for some line equation or a curve equation that fits all these points as well as, and the error should be minimum. So like in this case my error is just like 0.8049, or for in case my error is 0.8992. So we can suppose that this is supposed to be the better than this case. So right from so for as per syllabus, so we are going for some linear regression. So this is supposed to be a linear relationship exists between this one. So we'll not go for this type of equation, we'll go for this type of equation over here. So we'll suppose that this is a linear relationship available here.
then. So what is a linear regression? So in linear regression or simple regression, so we are having continuous output is available. So for this continuous output, we are having many types of regression available. As in previous slide, we had covered two types of regression models. So the simplest model is the linear regression, which contains only two attributes. One is independent variable and second one is dependent variable. So in this linear regression, we like to fit our data with the based hyperplane which goes through this point. So what is that hyperplane? So if we are going for 2 dimension, so my line will be a hyperplane. So if we are having a 3 dimension like this, in this case this is an 3 dimension data, so my hyperplane will be a plane. Fine. So if we are having a 4 dimension, so what we can have, so we can have a cube that divides your all plane. So this cube will be my hyperplane available here. So for n dimension, we can have n minus 1 hyperplane, n minus 1 dimension hyperplane is available that classify or that fits our data. So in case of classification, that is a discrete data, we can go for classification that classify all those data that is being either on positive side, either on the negative side, or we can have a regression line that maps a relationship in between all those maps. So we are going for continuous data, so we'll go for regression. So let's say we are going for a simple example. This is a linear regression. So what our objective is that we have to find out or predict the equation of this line. Fine. We have this points data is available, and this data, let's say this data is the function which maps the distribution of function. This distribution of data is just like y equals to, let's say this is mx plus c. Fine. Mx plus c. So it follows some distribution of data. We assume that it follows some distribution data plus some errors. हो सकता है कुछ error हो, उस error के कारण थोड़े से पॉइंट आगे पीछे हो जाए, और यूजुअली होता है कहीं ना कहीं error हो सकती है. जैसे नागर साहब को हर बार 100 नंबर्स नहीं मिल पाते, नागर साहब को हमेशा 99 नंबर मिल पाते हैं, तो हो सकता है वो वैल्यू की गलती हो जिससे एक नंबर उसका कम हो गया हो. तो दिस इज दैट एरर. फाइन. So this is my true function, but this is unknown function. We don't know this function. So what we'll try to do is we'll like to estimate a function that is y equals to estimated rate. So y equals to mx plus c. So जब हम estimate कर रहे हैं तो हम मान रहे हैं कि हमारे पास कोई error है नहीं. So this is my estimated m and this is estimated c. So we are having till now what we are having in the original function, we are having this this x is available for us, this y is available for us. Then what we like to do is we like to estimate m and c. So a simple usage मान के चलें कि मेरे पास ये पॉइंट्स हैं और मुझको पता करना है कि मान लीजिए मेरे पास 2200 जो है स्क्वायर फीट का मकान है, उस 2200 स्क्वायर फीट के मकान की प्राइस कितनी है. सो बेस्ड ऑन दिस डेटा, यूजुअली अगर हमारे पास हार्ड कंप्यूटेशन या हम उस बात करते हैं तो हम क्या कर सकते थे, हम इस वैल्यू और इस वैल्यू को ऐड करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसके बीच की वैल्यू निकाल लेते हैं. दिस इज मिड पॉइंट एल्गोरिथम. सो पर मिड पॉइंट एल्गोरिथम यूजुअली फॉलो नहीं कर सकती यहाँ पे. क्यों? क्योंकि ये सारे पॉइंट्स एक लाइन पे नहीं है. एक डेटा यहाँ आ रहा है, फिर डेटा यहाँ आ रहा है. यूजुअली ट्रू फंक्शन आपका कुछ ऐसा फ्लो कर रहा है. फाइन. सो हम मिड पॉइंट पे बात नहीं कर सकते थे. हो सकता था कि वो ट्रू फंक्शन यहाँ से फ्लो होके यहाँ जा रहा हो, ये एरर के कारण यहाँ पे आ गया हो. सो हम इसको एस्टिमेट नहीं कर सकते थे मिड पॉइंट के कारण. तो अभी हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि एक बेस लाइन आइडेंटिफाई करनी है. वो बेस लाइन क्या करेगी, वो बेस लाइन हमने आइडेंटिफाई कर ली, दैट इज हमने y इक्वल्स टू mx प्लस c, हमने ये वाली लाइन आइडेंटिफाई कर ली. तो अगर हमने ये वाली लाइन आइडेंटिफाई कर ली तो मुझको अब एस्टिमेट करना था 2200 पे कि y क्या होगा
तो मैंने जब ये वाली लाइन आइडेंटिफाई कर रखी है, मतलब मेरे पास m आ गया है, x मेरा 2200 है, c मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, तो मैं जस्ट इस इक्वेशन पर x रख दूंगा, तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज माय वैल्यू ऑफ y। फाइन। सो हमको पैरामीटर एस्टिमेशन ऐसे करना है। सो हमको करना क्या है, हमको ये पैरामीटर्स जो है ये पैरामीटर्स एस्टिमेट करना। फाइन। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें और होती हैं, कुछ चीज़ें ये होती हैं कि मान लो कि ये तो हमने प्रिडिक्ट करा था नया, पर उसके पहले एक्चुअल आउटपुट और डिजायर्ड आउटपुट में हमारे पास कुछ डिफरेंस हो रहे थे। जैसे हमने अब ये वाली लाइन आइडेंटिफाई करी थी, तो जब ये वाली लाइन हमने आइडेंटिफाई करी और इसमें अगेन मैं 500 रख रहा हूँ, तो अब मेरी जो y की वैल्यू है वो इंस्टेड ये वाली वैल्यू, मेरे पास y की वैल्यू ये आ रही है। Fine. So this is my supposed to be new estimated y. So this is y1. This is again my estimated y2. जो डेविएशन काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। अगेन मेरे पास एक y की वैल्यू आ रही है, दिस इज ये ओरिजिनल y यहाँ था, दिस इज y3. दिस इज जस्ट एन थर्ड इंस्टेंस. फाइन. दिस इज sorry, this is not instance, so this is my estimated y2 and this is my original y2. Again this is my y3 and this is my estimated y3. This is my original y4. y4 मतलब this is just an ओरिजिनल फंक्शन जो हमारे पास आउटपुट में था, और ये हमारा जो इस केस पे आ रहा है, जब मैं यहाँ पे सीधे डायगोनल सॉरी एक स्ट्रेट लाइन यहाँ डालूंगा, सो दिस इज माय एस्टिमेटेड y4. सो हमको ये पता चल रहा है कि हमारा जो ओरिजिनल था, दिस इज ओरिजिनल yi, ओरिजिनल yi, इस ओरिजिनल yi से मैंने जो एस्टिमेटेड करा उसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है। सो दिस इज माय ओरिजिनल, दिस इज माय एस्टिमेटेड, तो इन दोनों में कुछ डिफरेंस आ रहा है। तो हमारी बेस लाइन कौन सी होनी चाहिए, हमारी बेस लाइन वो होनी चाहिए जो इन सभी का जो डिफरेंस है, इन सभी पॉइंट्स का डिफरेंस जो है वो, इन सभी पॉइंट्स का डिफरेंस मतलब समेशन ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स, इन सभी पॉइंट्स का जो डिफरेंस है वो मेरा मिनिमम आना चाहिए। मिनिमम आना चाहिए, इसका मतलब हो सकता था मैंने एक लाइन ऐसे खींच दी, एक लाइन मैंने ऐसे खींच दी, तो लेट्स से ये मेरा एक और y एस्टिमेटेड है, मैंने एक नई लाइन बनाई थी, तो उसका एस्टिमेट यहाँ पे आ रहा होगा, किसी का एस्टिमेट यहाँ आ रहा होगा, किसी का इसका एस्टिमेट, अगर इस पॉइंट का एस्टिमेट इस लाइन के हिसाब से चले तो इसका एस्टिमेट यहाँ आ रहा है, इस पॉइंट का एस्टिमेट यहाँ आ रहा है, इस पॉइंट का एस्टिमेट यहाँ आ रहा है, इस पॉइंट का एस्टिमेट यहाँ आ रहा है, ये तो उसी लाइन पे आ रहा है, इस पॉइंट लाइन का एस्टिमेट यहाँ आ रहा है, इसका एस्टिमेट यहाँ आ रहा है, इसका एस्टिमेट यहाँ एंड सो ऑन। तो हमारे पास y की वैल्यू आ रही है, इंस्टेड एक एस्टीमेट इस पोजीशन पे आ रहा था, एक एस्टीमेट इस पोजीशन पे आ रहा था। फाइन, एक एस्टीमेट इसी पोजीशन पे आ रहा था, एक एस्टीमेट इस पोजीशन पे आ रहा था। हमारे पास n नंबर्स की लाइंस हो सकती है। तो जब हमारे पास n नंबर्स की लाइंस हो सकती है तो हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारी बेटर लाइन कौन सी होगी जो हमारी ये वाली जो एरर है, ये एरर जो है मिनिमम करे। मतलब अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, दिस इज द डिफरेंस, तो दिस इज द ओरिजिनल पॉइंट एंड दिस इज द एस्टिमेटेड पॉइंट, और दिस इज द ओरिजिनल पॉइंट एंड दिस इज द एस्टिमेटेड पॉइंट। तो इस डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, लेट्स से दिस इज अ, क्या बोलेंगे भाई, पिछली बार पढ़ा था इसको, एनी रिप्लाई, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, रेसिड्यूल। ओके फाइन गुड, सो दिस इज अ रेसिड्यूल। सो हम क्या करेंगे, हमारा जो रेसिड्यूल है वो सबसे कम होना चाहिए। सो लेट्स से this is my line. So again मैंने जो example बताया था, so what we'll try to do is when we have an actual function, so this is my actual function, so y equals to beta naught। अब मैं mx plus c पे बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं इस कंप्यूटर में कंप्यूटेशन कर रहा हूँ, तो ये सारे पैरामीटर्स को मैं इटरेटिवली यूज करने की कोशिश करूंगा। तो इटरेटिवली यूज करूंगा तो इनको एक इंडेक्स दे देता हूँ, लेट्स से दिस इज बीटा नॉट, बीटा वन एंड सो ऑन। सो इंस्टेड सो y equals to बीटा नॉट प्लस बीटा वन x1 प्लस सम एरर, वो ये वही एरर थी जिसके कारण नागर साहब को, मतलब वो फैकल्टीज जो हैं वो फैकल्टीज ढंग से कॉपी चेक नहीं कर पा रही, तो नागर साहब की रैंक जो है वो सेकंड या थर्ड पे आ गई इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर फर्स्ट। फाइन, सो लेट्स से वी आर गोइंग फॉर पर्टिकुलर सिंगल इंस्टेंस। तो पर्टिकुलर सिंगल इंस्टेंस को मैं यहाँ रिप्रेजेंट करूँगा, मतलब मेरे पास जो डेटाबेस था, दिस इज एन माय डेटाबेस, sorry for this, so this is instance 1, so this is instance I equals to 1, sorry कंप्यूटर वाला तो हमारी काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगी, दिस इज इंस्टांस 1, दिस इज इंस्टांस 2, दिस इज इंस्टांस 3, दिस इज इंस्टांस 3 4 एंड सो ऑन। सो वी आर हैविंग
this number of instances available. Fine. So this is how we can represent the overall function like here, or we can go for single instances over here. Then we'll go for all those sorts of things. So what we'll try to do is that this summation of EIs, this summation of EIs, not this summation of EIs should be minimum. So what is our basic assumption? So what we'll try to do is that these numbers are deviated. These numbers are deviated, or these errors like this. This error is, let's say, the mean of this error should be 0. Why we are going for so? Because let's say this is some positive value, this is some negative value, again this positive value. तो जब हम इसको सम अप करते हैं हमारी बेस लाइन के लिए, तो जब हमारी बेस लाइन को जब हम सम अप करते हैं तो इवेंचुअली इन सभी का सम जो होता है वो 0 पर जाता है. तो लेट्स से the mean of summation of all those terms is 0, so the mean is again 0, because 0 upon something is again is 0. So we'll assume that the expectation, so this is my expectation. So this is expectation means, so this we are saying that these errors are random in nature. Why random in nature? क्योंकि हम स्ट्रिक्टली नहीं बता सकते कि एक पॉइंट पे कितनी एरर आ रही है, दूसरे पॉइंट पे कितनी एरर आ रही है, तीसरे पॉइंट पे कितनी एरर आ रही है. मतलब स्टेटिस्टिकल मेथड में उस फैकल्टी ने कितनी एरर करी जिससे नंबर कम आए थे, देन टॉक में उस फैकल्टी ने कितने गलत कॉपी चेक करेगा. सो डिपेंड करता है कि स्पेसिफिकली नहीं है कि इसमें 2 नंबर काट लिए, उसमें 5 नंबर काट लिए, जिससे रैंक नीचे जा रही है. सो फाइन. सो दिस एरर्स आर सपोज टू बी रैंडम. सो अगर ये रैंडम है, सो वी कैन फाइंड आउट इट्स एक्सपेक्टेशन, जो आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा भी था, दिस प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स. सो दिस इज एन एक्सपेक्टेशन. सो एक्सपेक्टेशन इज जस्ट वेटेड सम ऑफ weighted mean. So this is expectation is 0. So we'll say that our expectation of this is 0, that is the mean or average is 0, a weighted average is 0. Then the variance, so let's say this variance is unknown and this is represented as a sigma square. So this is my variance, this is how we represent our variance. So this is a sigma square, this is supposed to be unknown. So if this is randomly distributed with mean 0 and some variance sigma square available here, so we can say that and again we can say that the covariance of this EI and EJ, let's say okay, statistical method में जितनी error आएगी और टॉक में जितनी एरर आएगी वो दोनों से रिलेटेड है, नहीं है, वो दोनों से रिलेटेड नहीं है. एक फैकल्टी कितने नंबर काट सकता है, दूसरा फैकल्टी कितने नंबर काट सकता है, तो देयर कोवेरिएंस इज 0. दैट मींस उन दोनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन, लेट्स से दिस इज एन एरर EI and the error EJ is has 0 variance. So instead of going for this type of variance, fine. Now, so these are normally distributed, sorry, so we can say that these are normally distributed with mean 0. So we have find that this is expectation is 0 and variance is sigma score. So we can say that, and it is randomly distributed, so we can say that these sigma i's are normally distributed with 0 मीन एंड सिग्मा स्क्वायर. अब आपको समझ में आ रहा है कि हम वो मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों पढ़ रहे थे, क्योंकि हमारे पास ये जो एरर है ना, ये एरर हमको फाइंड करनी है, ये एरर ही सबसे बड़ा दिक्कत दे रहा है. तो पिछले सेमेस्टर में या आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, अब हमारे पास मल्टीवेरिएट डेटा आ रहा है, मतलब हमारे पास डेटा में मल्टीपल है, दिस इज x1 अप टू xn और y. तो अब हर एक की एरर निकलेगी, तो उस एरर के लिए अभी हमने पढ़ा था मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ अब इस एक्सपेक्टेशन को हम, इस एरर को हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे. सो इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हमको वो लास्ट क्लास पढ़नी पड़ी थी, व्हाई वी आर गोइंग फॉर दिस मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अगर गलती करते ही नहीं तो हमारे पास ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम आती है. सो देयरफॉर व्हाट वी कैन से दैट the expectation of these yi's, that is the expectation of these yi's
एक एक इंस्टेंस का, ये दिस इज माय ट्रू फंक्शन। सो मैंने जब तक किसी के आगे ऊपर हेड नहीं लगाया है, तो अगर हेड लगाया दैट मीन्स इट इज एन एस्टिमेटेड पैरामीटर, अदरवाइज अगर हेड नहीं है इसका मतलब दिस इज माय ट्रू फंक्शन। सो फॉर दिस ट्रू फंक्शन वी कैन से दैट द एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई, मतलब हमारा जो ओरिजिनल वाई फंक्शन था वो कहाँ लाई कर रहा है, तो इट सोलरली डिपेंड्स ऑन this. So y is replaced by this equation. So y की equation थी, this is beta naught I plus beta 1 I plus xi plus epsilon I. So this is my distributive functions. Now again हम expectations को full expand करने की कोशिश करें, तो let's say हम इसको भी expand नहीं करते, हम इसको expand कर लेते हैं. So again this is equals to the expectation of epsilons and so on. So हमने यहाँ पे लिखा था this is expectation of this epsilon are 0, so this is 0. So the expectation of y is just moving around your this is m, अगर mx plus से बात करें this is mx and this is c. So अब हमारा जो y कहाँ होगा, भले कैसी भी एरर है, हम जब नया एस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे तो हमारा y कहाँ आएगा, हमारा y उस y लाइन, हमारा जो y होगा वो mx plus c लाइन के आसपास ही कहीं घूमेगा. सो दिस इज माई एक्सपेक्टेशन. तो इसका मीन क्या होगा, इसका मीन उस mx प्लस c के आसपास होना चाहिए. इतना समझ में आ रहा है, मतलब मैं जब एक्सपेक्टेशन बोल रहा हूँ तो हम जो बोल रहे थे यहाँ पर डिफरेंट पे कि हमारा जो y बेस लाइन पे कहाँ आना चाहिए, तो हमारा जो बेस y लाइन होगा वो इस लाइन के आसपास ही कहीं आना चाहिए. दिस इज आवर ट्रू फंक्शन. फाइन. एनी प्रॉब्लम ओवर देयर? नो सर. ओके फाइन. सो इतना समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? Fine. Now, so we are having this mean. So this is our mean of y. So this is mean of y. So this is my mean of y. Now we are calculating the variance of y. So what are the variance? So variance is again I am replacing y by its equation. So this is beta naught I plus beta 1 I plus x1 plus epsilon I. So this is my again an equation. So this is a variance. Again मैं इसको expand करता हूँ. So this is assumed to be the constant. Fine. So beta naught is not randomly distributed. So when it is not randomly distributed, so this is a constant value, and the constant value is supposed to be variance of constant value is always 0, because हम जब रैंडम वेरिएबल ले रहे हैं तो रैंडम वेरिएबल का कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ये उसका वेरिएंस यहाँ से यहाँ तक होगा. पर अब मैं बोल रहा हूँ कांस्टेंट वैल्यू, वो तो यहीं चिपकी हुई है, तो उसका क्या वेरिएंस होगा, वो यहीं की यहीं रहेगा. सो वेरिएंस ऑफ दिस बीटा नॉट इज 0. अगेन these are again some constant value. ये तो input observation है. Again this is not an randomly distributed. So this is not randomly distributed, this is not an randomly distributed. जब randomly distributed नहीं है मतलब वो एक फिक्स वैल्यू ही लेगा, और जब वो फिक्स वैल्यू लेगा तो हम ये बोल सकते हैं कि अभी उसका वेरिएंस हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये हम ओरिजिनल फंक्शन ले रहे हैं. मैं यहाँ पे बीटा नॉट हेड या बीटा 1 हेड जो है वो नहीं ले रहा हूँ. दिस इज ओरिजिनल. सो अगेन दिस इज एन ओरिजिनल फंक्शन, क्योंकि वो ओरिजिनल फंक्शन तो हमारे पास स्पेसिफिक था, तभी हमारे पास y की वैल्यू आई थी x की वैल्यूज के साथ. सो अगेन दिस इज एन कांस्टेंट, दिस इज नॉट रैंडम वैल्यू, दिस इज एन स्पेसिफिक वैल्यू. इतनी वैल्यूज पे आ रही है, तो अगेन दिस इज बीटा नॉट एंड बीटा x. तो इन दोनों का वेरिएंस कितना होगा, इन दोनों का वेरिएंस 0 होगा, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एक पॉइंट पर स्टक करेगी. आओ नाउ दिस इज, इसका हमने वेरिएंस निकाला था. दिस इज माय वेरिएंस, बिकॉज हमारी एरर यहाँ से यहाँ तक जा रही थी, जिसमें हमारा y यहाँ एग्जिस्ट कर रहा था. सो दिस इज माय वेरिएंस. सो दिस इज हाउ आवर वेरिएंस. सो द एक्सपेक्टेशन ऑफ y इज लाइज, सो मीन लाइज ऑन बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 एंड वेरिएंस, तो वो कितना फैलेगा. सो द वेरिएंस फॉलोज विद दिस एप्सिलॉन i. सो दिस इज बाय सिग्मा स्क्वायर. सो as a consequences, what we can say that this y is normally distributed with mean beta naught plus beta 1 x1 and with variance a sigma square. Fine. So this is how we can say that so this is how we can say that this is mu y. So this is my mu y. So expectation of either mu y, or we can say that this expectation of y, how y is likely to be present on this. So these values of x's, so this is x plane and this is y plane. So these are our errors, and these errors and the expectation of y, the higher probabilities on this line. So this is, you can say that a peak is on this line, so the higher probability is over there, and with some low probabilities right from here to there. Again from this different instances, let's say this is my
y1, this is y2, and this is yn, and so on. So these are different instances, and the probability of expectation of this the expectation of lying a y on this line is located on this line with highest probability over these points, and with varying probability like from here to here. तो यहाँ से यहाँ तक y हो सकता है, पर highest probability आपकी होने की probability यहाँ है. So this is our true function. Fine, this is my basic assumptions. इतना डायग्राम समझ में आता है सभी को? Any responses? Sir. Okay, fine. So what is the criteria of choosing the baseline, which line to draw? So we are having numbers of lines. So we are having different criteria. So let's say we are taking so we are having numbers of lines are available. So what is the base criteria? So we'll look for, let's say this is first example. So let's say this blue lines, we'll take this blue line, and so we are having this true value, this is y1, and this is true value y2, this is true value y3, this is y4, y5, y6, y7, y8, and this is the estimated. जो हमने y equals to, हम एक नई लाइन ड्रॉ करेंगे, अभी फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम एस्टिमेटेड करें. So this is my y head, this is my estimated value over here, this is my estimated value of y2, this is original, and this is my estimated value, this is again estimated value, this is y4 head, this is y5 head, this is y6 head, and so on. So this is estimate value. So what should be the criteria? So what will be the criteria? So criteria will be the residual. So we'll collect the residuals. This is the difference between your desired actual output and the desired output. So this is my actual output, and this is my desired estimated output. So this is our difference. So a problem lies is that we have supposed that when we like to integrate or summed up all these residuals, so it seems that it is equals to 0. So it tends to 0. एक्चुअल वैल्यूज में हमारे पास डेसिमल की वैल्यूज में जब हम कंप्यूटेशन करते हैं तो फाइनली ये एग्जैक्टली 0 पे नहीं जाता है, पर दिस इज लाइक 6.23 into 10 to the power minus 30 and so on. तो एक्सपोनेंशियल में minus 30 पावर पे जाता है, तो it tends towards minus 30. So हम इस पे बात तो नहीं कर सकते, तो ये वाला क्राइटेरिया तो हम नहीं ले सकते. तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन हमको तकलीफ दे रहा है. कहीं पर ये माइनस साइन आ रहा है, लेट्स से दिस इज माइनस साइन, दिस इज माइनस साइन, दिस इज प्लस साइन, दिस इज प्लस साइन, अगेन दिस इज एन माइनस साइन, दिस इज प्लस साइन. तो ये प्लस प्लस, ये प्लस और प्लस होकर ये माइनस हो जाते हैं, और दिस इज इक्वल्स टू सम. मान लो या -4 आया, या -5 आया, या +2 आया, या +2 आया, या +2 आया, या +2 आया. तो इन सारी वैल्यू को, जैसे लेट्स से पहले पर हमारे पास -2 आया, अगेन -3 आया, अगेन पहले पर हमारे पास +1 आया, फिर उसके बाद +1.5 आया, ये कितना हो -5. तीसरे पर हमारे पास दिस इज 3.5 आ गया, +3.5. तो यूजुअली दिस इज इक्वल्स टू 0. सो दिक्कत दे जाता है. तो हम क्या करें, इस नेगेटिव साइन को हटा दें. तो इस नेगेटिव साइन को हम मैग्नीट्यूड चेंज कर दें. मैग्नीट्यूड कैसे चेंज करें? मैंने आपको एक एब्सोल्यूट फंक्शन बताया था पाइथन की प्रोग्रामिंग में. सो विल टेक अ मैग्नीट्यूड. तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक द square difference of all those terms. So we'll take the square distance. So we'll go for square distance. So this is known as squared sum of residuals, or we can represent it as an SS residual. So अब इनका सम क्या होता है? इसका सम जीरो तो नहीं आता. तो पहला एडवांटेज क्या हो रहा है? पहला एडवांटेज ये हो रहा है कि मैं इसको जो है हमारी जो नेगेटिव वैल्यूज हैं वो अगेन पॉजिटिव हो गई हैं. दूसरा सम क्या हो रहा है कि ये जो ज़्यादा डिफरेंस है ना, इस ज़्यादा डिफरेंस, ये डिफरेंस ज़्यादा है, ये डिफरेंस कम है, तो ये जितना ज़्यादा डिफरेंस है ना, उसको हम थोड़ा ज़्यादा पेनल्टी दे दें. तो अगर हमारे पास -2 आया है, तो मैं उसको पेनल्टी स्क्वायर पे दूंगा, तो मैं उसको ज़्यादा ही पेनल्टी दे दूंगा, तो वो दैट बिकम्स 4. सो हम उस पर पेनल्टी भी बढ़ा रहे हैं कि जो जितना ज़्यादा डेविएट हो रहा है ना, उस पर हम उसको पेनल्टी बढ़ा रहे हैं. सो दो एडवांटेज है, हम एक पे ज़्यादा डिफरेंस को ज़्यादा पेनल्टी दे रहे हैं और कम डिफरेंस को कम पेनल्टी दे रहे हैं. इन एडिशन टू दैट हम हमारा जो मैग्नीट्यूड है और सारे हमारे जो साइन है, उस साइन को भी हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं. सो दिस इज हाउ वी कैन गो फॉर सम ऑफ रेसिडुअल्स. इन एडिशन टू दैट अब जब हमको पैरामीटर एस्टिमेट करना है, तो लेट्स से ये हमारा जो फंक्शन आ रहा है, ये फंक्शन जब हम प्लॉट करेंगे तो इट लुक्स लाइक दिस कॉन्वेक्स फंक्शन. या सॉरी, ये स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स होना चाहिए था,
तो ये ऐसा आएगा. सो फाइन. सो इट लुक्स लाइक एन कॉन्वेक्स फंक्शन. तो अब जब कॉन्वेक्स फंक्शन पे हम हमारे पैरामीटर सेट करने की कोशिश करेंगे, लेट्स से दिस इज माय m, इस पॉइंट पे मैं m डालूंगा और इस पॉइंट पे मैं c डालूंगा और हम इन m और c को अपडेट करने की कोशिश करेंगे. ये कैसे अपडेट होते हैं, जब मशीन लर्निंग का सिलेबस आएगा तब हम चेक करेंगे. तो जब हमारे पास m और c आता है तो हम थोड़ा सा यहाँ जाने की कोशिश करेंगे. तो ये दिस इज अ पॉइंट विच इज अ लोकल मिनिमा. सो ये कन्वर्ट हो गया हमारा कॉन्वेक्स फंक्शन में, और कॉन्वेक्स फंक्शन में कन्वर्ट हो गया. इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारे पास लोकल मिनिमा और ग्लोबल मिनिमा दोनों एक ही होती है. अगर वो फंक्शन कॉन्वेक्स नहीं होता है, जैसे ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन थी, ये एक स्ट्रेट लाइन है. अब इस स्ट्रेट लाइन में क्या ग्लोबल मिनिमा और क्या लोकल मिनिमा. सो फाइन, बट दिस इज अगेन एन कॉन्वेक्स फंक्शन, बट इट लुक्स लाइक अ बेटर कॉन्वेक्स फंक्शन जिसपे आप ग्लोबल मिनिमा को अचीव कर सकते थे. अगर सभी की वैल्यू कांस्टेंट आ रही होती तो एक लाइन हमारे पास यहाँ आती है, वो यहाँ पे भी वैल्यू हो सकती थी और यहाँ पे भी वैल्यू हो सकती थी. इंस्टेड यहाँ पर आपके पास थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, पर यहाँ से इस जगह से लेके इस जगह तक वैल्यू कांस्टेंट हो रही. तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे थे विच इज द बेस्ट सोल्यूशन. सो व्हाट वी कैन डू इज वी गो फॉर दिस strictly convex function. So this looks like an strictly convex function over here. So this strictly convex functions looks like we can achieve the global minima over here. Otherwise, if it is not in convex function, so just like this is a convex function, so either this is an global minima, हम यहाँ से वैल्यू अपडेट करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ हम बढ़ रहे थे, या हम जाते तो यहाँ पर हम मिनिमा पे आते. अगर हम इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे थे तो हम यहाँ फंस जाते. अगर हम इस पॉइंट से स्टार्ट करते तो भी हम यहाँ फंस जाते. हम इस पॉइंट से स्टार्ट करते तो हम ग्लोबल मिनिमा पहुँच पाते. तो दिस इज व्हाई वी आर गोइंग फॉर दिस सम ऑफ रेसिडुअल्स. फाइन. सो दिस इज हाउ वी विल क्रिएट एन कॉन्वेक्स फंक्शन ओवर हियर. देन so what we'll try to do is we'll use a least square estimate. So we'll go for least square estimate. So what we are trying to do is we like to minimize this. So हम इसको minimize करने की कोशिश कर रहे हैं. So this is my true function, this is my true function, and this is my estimated function. So what we'll try to do is we like to estimate over this. So these are my estimated values. So here this is an error. So this is my estimated value, and we like to minimize this original function with estimated function. So what we can do is that we will go for differentiating all those things. So why we are going from differentiating all those things? So because when we are here, so we are differentiating with respect to, let's say this is my beta naught and this is my original loss function. So let's say this is equals to L beta. So this is my L beta. So this is my L beta here, and now this beta vectors contains two values, that is beta naught and this is beta 1 over here. Now first I like to differentiate it with respect to beta naught. तो बीटा नॉट के रिस्पेक्ट्स में अब मल्टी डायमेंशन व्यू आपको मैंने बताया था. तो एक तरफ से आपको ये ऐसा दिख सकता था, दूसरी तरफ से आपको ये फंक्शन, लेट्स से दिस इज एन माय बीटा 1. अगर दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन देखूंगा, अगेन दिस इज एन माय एल बीटा. सो ये एल बीटा मेरे पास दूसरे डायमेंशन से वो हो सकता था ऐसा दिख रहा हो. तो सो लेट्स से विल लाइक टू differentiate it. So let's say we start with some position. So हमने इस position से उसको differentiate करना. So what we are trying to do is we are like to differentiate it. So we are differentiated. So what we are trying to do is we like to in order to find out the differentiation, what we are trying to do is we like to calculate the rate of change. So this is the rate of change. So this is a change of, this is the change of L beta and this is the change of our beta naught. So this is my delta बीटा नॉट. काइंडली मोबाइल से सॉरी माउस से चला रहा हूँ तो राइटिंग इतनी अच्छी आ नहीं रही है. सो दिस इज माय डेल्टा बीटा एंड दिस इज माय डेल्टा एल बीटा. सो दिस इज रेट ऑफ चेंज. तो हमारा ये रेट ऑफ चेंज. तो ये हम कहाँ तक जाना चाहिए, जहाँ पर ये हमारा रेट ऑफ चेंज जो है वो मिनिमम हो जाए. तो रेट ऑफ चेंज मिनिमम कहाँ होगा, मतलब जहाँ पे ये वैल्यू 0 हो जाए, हमारा ये जो डिफरेंशिएशन 0 हो जाए. तो हम क्या बोलेंगे, हमको हमारी मिनिमा कहाँ मिलेगी, व्हेन दिस डेल्टा एल बीटा अपॉन दिस डेल्टा बीटा नॉट इज इक्वल्स टू 0. सिमिलरली केस फॉर बीटा 1. सो हम इसको मिनिमाइज करेंगे. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग फॉर द मिनिमाइजिंग. सो वी आर here. So we are differentiating it
with where your beta. So in beta you are having two different values, either this is beta naught and this is beta 1. Fine. So ये so मैंने वहाँ L लिखा था, let's say this is an S, you can go for anything, so let's say this is L or S. So we are differentiating it, so so आपको इसका differentiation मिला, so this is beta naught, so your beta naught, so this is yi, so दो स्क्वायर था वो स्क्वायर रूट के आपके पास यहाँ पर आ गया, so this is again your square values. Then yi पे मेरे पास कोई वैल्यू नहीं थी, देन बीटा नॉट मेरे पास बीटा नॉट से ही मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, सो यहाँ इसकी वैल्यू यहाँ इसका कोफिशिएंट -1 था, तो 1 का तो कुछ नहीं होना, माइनस उठ के यहाँ आ गया, सो दिस इज माइनस बीटा एंड दिस इज अगेन एन कांस्टेंट वैल्यू, सो दिस इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ -2 एंड सो ऑन. सो दिस इज योर वैल्यूज. नाउ ब्रैकेट ओपन कर लिया, सो दिस इज अगेन 2 तो हमने उधर भेज दिया डिनोमिनेटर में, दिस इज 0, माइनस भी उधर भेज दिया, अगेन दिस इज 0, सो दिस इज yi minus n beta. Why this is my n beta? Because this is summation of your beta hat. So summation of beta hat, this is my summation of beta hat. So what we are having n numbers of items available here, so we can remove this because it starts from 1 to n. Fine. So let's say मेरे पास एक constant value है, let's say this is a, और a को मैंने summation करा 1 से n तक, तो मेरे पास क्या मिला, मेरे पास n टाइम्स a, मैंने a को n टाइम्स ऐड करा, तो यहाँ मैंने बीटा को n टाइम्स ऐड करा, तो दिस बिकम्स n बीटा. अगेन नाउ दिस इज नॉट एन कांस्टेंट वैल्यू बिकॉज इट इज इटरेटिंग ओवर एक्साइज, सो बीटा 1 बार आया एंड दिस इज एक्साइज. सो जब ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आप जब आप सेव करेंगे, सो फॉर्मूले को खोलेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यूज मिलेंगी, तो आपके पास जो वैल्यूज मिलेंगी, दिस इज एन समेशन आई, ये बीटा मैंने इस तरफ करा, तो दिस इज समेशन ऑफ yi अपॉन n, सो दिस इज इक्वल्स टू y बार, सो दिस इज अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू आ रही है, दिस इज y बार, दिस इज मीन ऑफ y, अगेन दिस इज xi अपॉन n, सो दिस इज एन b इंटू x बार, दिस इज समेशन ऑफ xi, मतलब सारे x को ऐड करके ऊपर नीचे n लाए, दिस इज एन जस्ट एन एवरेज, सो दिस इज x बार, सो व्हाट विल गेट इज बीटा नॉट इज इक्वल्स टू y1 y bar minus beta 1x. Similarly this case में मैं x1 बीटा 1 के साथ डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो माइनस तो यहाँ पर आएगा ही सही, देन दिस इज नॉट कांस्टेंट वैल्यू, हमारे पास यहाँ 1 नहीं था, तो इसके साथ इस बीटा 1 को वापस एक बार फिर अगेन मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा, तो कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा. सो सॉल्विंग ऑल दोस इक्वेशन, व्हाट विल गेट इज बीटा 1 इज इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ xy upon variance of xy and variance of x. So this is variance of x, this is xi bar minus x bar into yi bar minus y bar upon xi minus x bar into, so this is variance of covariance of xy upon this is variance of xx, so this is my variance of xx. So this is how we'll calculate our values. तो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी, जहाँ मेरी वैल्यूज डिफरेंशिएट हो रही थी उन वैल्यूज को मैं डिफरेंशिएट, मेरा जो रेट ऑफ चेंज था उस रेट ऑफ चेंज को मैंने कांस्टेंट कर दिया, तो यहाँ मैंने रेट ऑफ चेंज को कांस्टेंट करा, दैट इज व्हाई वी आर गोइंग फॉर दिस डिफरेंशिएटिंग एंड this differentiating. So we are differentiating with each dimension, so in first dimension we are differentiating with this dimension and we are going for another differentiation. So we'll get 2 parameters. So these are the some canonical formulas, are straight line canonical formulas are available, either we can go for all those formulas and so on. So हम जब मल्टीवेरिएट एनालिसिस पढ़ेंगे तो हम ये चेक करेंगे कि हम डायरेक्ट इन फॉर्मूलाज पे काम नहीं कर सकते, why we'll check. So now again एक्चुअली जब हमारे पास मल्टीपल वेरिएंस आएगा तो मेरे को ये एसएस रेसिडुअल आपको समझाना है. पिछली बार भी ये एसएस रेसिडुअल ने बड़ी तकलीफ करी थी, तो इस बार थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, व्हाट इज दिस एसएस रेसिडुअल्स एंड सो ऑन. सो दिस एसएस रेसिडुअल इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ योर ei स्क्वायर, सो दिस इज yi minus beta naught hat and so on. So this is my formula. Now so we have to calculate our unknown variance. So what is our unknown variance? So हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सो दिस इज yi स्क्वायर माइनस बीटा नॉट, तो इस बीटा नॉट की वैल्यू मैं वापस यहाँ पुट कर देता हूँ, तो बीटा नॉट की वैल्यू क्या करूँगा, दिस इज y बार माइनस बीटा 1 हेट
एक्स बार माइनस, सो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी। व्हाट इज दिस एस एस आई? सो दिस इज एस एस आई इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार। अब ये वाई बार कहाँ से आ रहा है? ये वाई बार यहाँ से आ रहा है। सो दिस इज माई एस एस आई। और ये एक्स आई एक्स एक्स क्या आ रहा है? दिस इज एक्स एक्स इज एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स आई तो यहाँ पर है ही सही, और एक्स बार हमारे पास यहाँ से आ रहा है। सो दिस इज एन एक्स आई, दिस इज एक्स एक्स बार। फाइन। सो ये जब हमने सॉल्व करा तो हमारे पास ये वैल्यू सही है। यू कैन सॉल्व इट, सिंपल सा फॉर्मूला, जस्ट एन एक्सपांशन। नाउ वी हैव टू टेक आइडेंटिफाई दैट अननोन वेरिएंस जो हमने यहाँ पर डिस्क्राइब करा था। दिक्कत तो हमारे पास यही थी कि ये जो अननोन वेरिएंस है ये कितना फैल रहा है ना, किसका इसका फैलाव कितना है। तो दिस अननोन वेरिएंस जो हमने यहाँ डिस्क्राइब करा था, इस अननोन वेरिएंस को हमको आइडेंटिफाई करना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे कि हमारा फॉर्मूला, हमने ये लाइन बना ली, दिस इज एन गुड एंड फाइन, पर हमको ये चेक करना है कि ये लाइन हमारी कितनी सही है कितनी गलत है। इन फॉर्मूले से हमको लाइन मिल जाएगी। फाइनली ये फार्मूला जब मेरे पास बीटा वन और बीटा नॉट के हमारे पास वैल्यू आ गई, तो अगेन मैं क्या करूँगा, इसमें y इक्वल्स टू मेरे पास बीटा नॉट एस्टिमेटेड की वैल्यू है प्लस बीटा वन एस्टिमेटेड की वैल्यू है, और नया x जो हमने बोला था कि 2200 पर मेरे को वैल्यू आइडेंटिफाई करनी थी, तो 2200 की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, बीटा वन की वैल्यू यहाँ से आ गई, बीटा नॉट की वैल्यू यहाँ से आ गई, तो मेरा नया y मैं यहाँ से प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। दिस इज गुड एंड फाइन, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम, हमको ये चेक करना है कि हमने जो मॉडल बनाए हैं वो सही है नहीं, सही है कि नहीं। क्यों दिक्कत क्या है कि हमारे पास जो लाइंस की इक्वेशन है, हमारे पास ये लाइंस की इक्वेशन है, हो सकता है ये वाली लाइन हो, ये वाली लाइन हो, या ये वाली लाइन हो, तो हमको चेक करना है कि कौन सी लाइन बेटर है। तो अब हमको चेक करना है कि क्या ये हमारा मॉडल सही है या नहीं है। तो जब हम हमारा मॉडल चेक करने की कोशिश करेंगे, सो लेट्स से we have to find out the estimation of all those sorts of things. So let's say हमको अब ये चेक करना है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ का एक्सपेक्टेशन ले लेता हूँ कि ये हमारी जो एसएस रेसिडुअल है, एसएस रेसिडुअल मतलब ये जो हमारी एरर्स सॉरी रेसिडुअल्स आ रहा है, ये रेसिडुअल आने का एक्सपेक्टेशन क्या है, ये रेसिडुअल का मीन कहाँ आ रहा है। तो इस रेसिडुअल का मीन हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। मतलब हमारा जो ओरिजिनल y है माइनस y हेट है, दिस इज रेसिडुअल। सो व्हाट इज आवर रेसिडुअल? सो दिस इज आवर रेसिडुअल। तो ये हमारा रेसिडुअल जो है, ये वाला रेसिडुअल, ये रेसिडुअल, ये रेसिडुअल, ये रेसिडुअल। सो ये रेसिडुअल का हमारा मीन कहाँ रहा है, मतलब व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ हैविंग दिस मीन, सो दिस रेसिडुअल, ये हम इसको एक्सपेक्ट कहाँ करें। तो मैं यहाँ पे उनका एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। तो वहाँ से हमको वेरिएंस, हमको जब इसका एक्सपेक्टेशन निकालने की कोशिश करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमको एक्सट्रीम पॉइंट्स तो हमको पता है, हमको एक्सट्रीम पॉइंट्स पता है कि हमारा एक्सट्रीम पॉइंट यहाँ पर है, ये हमारा एक्सट्रीम पॉइंट यहाँ पर है, एक्सट्रीम पॉइंट यहाँ पर, एक्सट्रीम पॉइंट यहाँ है, पर हमको ये नहीं पता कि इसका मीन कहाँ है। इसका मीन अगर हमको पता चल जाएगा तो आगे पीछे की वैल्यूज तो हमको खैर पता ही है, तो हम उसका वेरिएंस यूजुअली निकाल सकते हैं। फाइन, हमको वेरिएंस निकालना है कि इंदौर कहाँ से कहाँ तक फैला है। तो इंदौर मान लीजिए कि यहाँ पे आपके इंदौर बारोली पे फैला हुआ है, उधर राउत वैष्णव से मेडिकैप्स तक फैला हुआ है। तो अब हम मीन निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा वेरिएंस कितना है। फाइन, तो हमको एक्सट्रीम पॉइंट्स तो पता है पर हमको मीन नहीं पता। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर लाइक टू कैलकुलेट द मीन ऑफ ऑल दोस वैल्यूज। तो मैंने इस दोनों की तरफ मीन ले लिया। फाइन, तो क्योंकि जस्ट एडिटिव प्रॉपर्टी में इधर मीन लिया और इधर मीन लिया, तो मेरे पास एक्सपेक्टेशन का जो फॉर्मूला होता है, दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ a प्लस माइनस बी इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ a and plus or minus expectation of b. So this is my just an formula. So मैं यहाँ वैल्यू पुट कर सकता हूँ। So this is how we can calculate our expectation over here. So आज के लिए इतने करते हैं। आई थिंक हमारा टाइम भी हो चुका है। So we'll like to check in next classes. Fine. So meanwhile, if you are having any problem, you can ask. Thank you, sir. Okay, fine. Thank you. Thank you.
हाँ नागर साहब, आपको कोई प्रॉब्लम थी? साक्षी नागर? नहीं थी, अवनी को थी। हाँ अवनी को थी। हाँ अवनी बोले। सर वो ये पूछना था कि जो आपने थ्योरी असाइनमेंट दिया है हाँ वो हमें हैंड रिटन देना है आपको या वर्ड फाइल में देना है? वर्ड आपका सारी चीजें जो होंगी ना वो वर्ड फाइल में ही आएंगी। तो सर वो और पाइथन के जो वो मतलब प्रोग्राम है वो हमें जुपिटर नोटबुक शेयर करनी है आपसे या फिर हम लोगों को